हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Know that the Lord, he is good. It is he who made us, and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generation. My friends, I welcome you once again in this worship service. मैं आप सभी का स्वागत आज के इस इबादत में करता हूं और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जैसा कि हम निरंतर लिंक के माध्यम से हम अपनी वर्शिप को अंजाम देते आ रहे हैं, अपनी वर्शिप हम कर रहे हैं और जाहिर बात है कि परमेश्वर हमारी वर्शिप को सुनता है, हमारे बीच में वो अपनी उपस्थिति को रखता है। आइए इस संडे की इबादत को शुरू करने से पहले हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना मांगें। Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful, wonderful morning that you have given us and added in our lives, Lord. And Lord, as we all are gathered together, and Lord, we are attending this worship service through media, Lord, be with us and guide us each and every day of our life. And also, Lord, I commit every one of us into almighty hand, and Lord, make your glory be shine upon us. Thank you, God, and today's, Lord, each and everything, Lord, sermon, singing, clapping, praise and worship, everything may acceptable unto you. Thank you, God, once again for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम अपना पहला गीत गाएंगे और उस गीत के दौरान हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। And we will sing our first song and we will glorify God during this song, and which is found in Hindi book, hymn number 96, सुनो फल की फौज शरीफ गाती यीशु की तारीफ। हम लोग मैथोडिस्ट हिंदी गीत की पुस्तक में से गीत संख्या 96 गाएंगे, जिसके बोल हैं सुनो फल की फौज शरीफ गाती यीशु की तारीफ। आइए इस गीत के दौरान हम परमेश्वर को महिमा दें। इंसान
को जिंदगी और नूर, तू ही बसता है भरपूर। खाली से सब अपनी शान, ना हमारे फिर इंसान। वादी आदम हो बुलंद, दूसरे जन्म के फर्जंद, सुनो फल की फोशरी, गाते यीशु की तारीफ। कौमों की मुराद हमें अपना घर बना, उठे और की नसर हमें सबका से पूछा। शक आदम की बेटा, अपनी सूरत में बैठा, दूसरा आदम ऊपर से अपनी उर्फ से भर दे। सुनो फल की फोशरी, गाते यीशु की तारीफ। अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू अफर्म आवर फेथ बिफोर गॉड, और जो कि पाया जाता है अपोस्टल्स क्रीड, इंग्लिश मेथोडिस्ट हिम बुक नंबर 738 और हिंदी पेज नंबर 1. We will affirm our faith before God by reading Apostles' Creed, which is found in English book 738 and in Hindi page number 1. Let us unite in this historic confession of the Christian faith. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his Holy Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. The third day he rose from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. अजीजों, हम सब अपने स्थानों पर रहेंगे और आज की रेस्पॉन्सिव रीडिंग, उत्तरवादी पाठ हम निकाल लेंगे, जो कि लिया गया है भजन संहिता उसका 104वां भजन 1 से लेकर 23 वचन तक. For today's responsive reading has been taken from the book of Psalms number 104, verses beginning from 1 to 23. The first verse I will read and the second verse you can join, and the last verse we all read together. हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य के है. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है. तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है. तू जियाले को चादर के समान ओढ़े रखता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है. जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों का अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है. जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है. तूने परमेश्वर को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए. तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया. तेरी घुड़की से वह भाग गया. तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली कर कर बह गया. वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग में उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था. तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता है और न लौटकर स्थल को ढांप सकता है. तू नालों में स्रोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच में बहते हैं. उसने मैदान के सब जीव जंतु
जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न कराता है। एंड वाइन टू ग्लैडन द हार्ट ऑफ मैन, ऑयल टू मेक हिज फेस शाइन, and bread to strengthen man's heart. The trees of the Lord are watered abundantly, the cedars of Lebanon that he planted. In them the birds build their nests, the stork has her home in the fir trees. The high mountains are for the wild goats, the rocks are a refuge for the rock badgers. He made the moon to mark the seasons, the sun knows its time for setting. You make darkness, and it is the night, when all the beasts of the forest creep about. The young lions roar for their prey, seeking their food from God. When the sun rises, they steal away and lie down in their dens. The last verse we all read together. Man goes out to his work and to his labor until the evening. हो सिताइश बाप की हम लोग सब अजीजों एक साथ मिलकर गाएंगे। अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना मांगेंगे। Now it's time to put our supplications before God unto his feet, so he will hear our prayer. And also we'll pray for our church, for our congregation, for our pastors, for our committees, organizations, for our needs, for the people, those who are not feeling well, those who are sick. We'll pray for those who are going to celebrate their birthdays and wedding anniversary during this week. हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना मांगेंगे जो बीमार हैं, जो आ नहीं सकते, उनके लिए भी हम प्रार्थना मांगेंगे। हम उनके लिए प्रार्थना मांगेंगे जो अपने बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज को इस सप्ताह मनाने जाते हैं। हम लोग उन सब के लिए प्रार्थना मांगेंगे परमेश्वर पिता से, और उसके बाद हम आए हमारे बाप की दुआ सब लोग एक साथ मिलकर कहेंगे और प्रार्थना करेंगे कि 22 तारीख को जब मल्टी लैंग्वेज या मल्टीलिंग्वा जब क्वायर परफॉर्म होती है या परमेश्वर के लिए गीतों को कैरल्स के उसमें गाया जाता है, लिंक के माध्यम से ये आएगा, और परमेश्वर इस पे भी अपना आशीष भरा हाथ बना के रखे। और मैं निवेदन करता हूँ पास्टर मन कुमार राय से कि वो आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। May I request Pastor Man Kumar Rai, please come and lead us in pastoral prayer, followed by Lord's Prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर पिता, एक बार फिर से तेरे सम्मुख आते हैं और प्रभु परमेश्वर तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं, खास तौर में उन लोगों के लिए जो इस हालात के समय में प्रभु परमेश्वर मुश्किल और तंगी में है। खुदा बाप उन्हें संभाले और सहायता और मदद करे, और दुआ करते हैं खुदा बाप उन सब को जो प्रभु परमेश्वर इस लॉकडाउन के द्वारा प्रभु काम नहीं है, उन सब के लिए प्रभु परमेश्वर पिता उनको असल काम मिल सके, और प्रभु परमेश्वर उनकी घर परिवार उनके अभाव पूरी हो सके। खुदा बाप उन्हें उनके साथ रहे, और ख़ास तौर में उन लोगों के लिए जो इस कोरोना काल के द्वारा उस घर में पीड़ा और दुखी आई है, और उस घर को प्रभु सांत्वना सहायता और मदद कर, और खुदा बाप उन्हें ताकत और तंदुरुस्ती दे, उन्हें पूरे परिवार को संभाल के रख। खुदा बाप आपका अनुग्रह दया हो, और मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए जो प्रभु परमेश्वर पिता जो इस समय प्रभु परमेश्वर बहुत दुखी और कठिनाई में है, उन सबको तू सहायता और मदद कर। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर हमारे पासवान के लिए, खुदा बाप
पास्टर रेवरेंड जॉन आर विश्वास, उनके सेवकाई के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके पूरे परिवार को खुदा बाप तेरे हाथ में सौंपते हैं। बहुत ऐसे आशीष और ताकत और तंदुरुस्ती दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर सारोन और उनके सेवकाई के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए, उनके घर परिवार के लिए और तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप। और हमारे पूरे स्टाफ को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा बाप। उन सबको बहुत ऐसे आशीष करें खुदा बाप, सबको तंदुरुस्त रखते, उनके घर परिवार पर सहायता और मदद करें। दीपक उनके घर परिवार, नंदराज जी उनके घर परिवार, और मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप लोजिनेश उनके घर परिवार, उनके काम पे प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। अशोक उनके घर परिवार में, और प्रार्थना करते खुदा बाप इसे प्रभु परमेश्वर अमनीश उनके घर परिवार, उनके काम पर बहुत ऐसे आशीष करे। मिसेस क्रिस्टीना उनके घर परिवार पर बहुत ऐसे आशीष करे, ताकत और तंदुरुस्ती दे। और मैं दुआ करता खुदा बाप पूरे हमारे अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च तमाम लोगों के लिए, हिंदी इंग्लिश नेपाली कलीसिया के लिए, उनके परिवार के लिए, उन पर बहुत ऐसे आशीष करे, ताकत और तंदुरुस्ती दे। मैं दुआ करता हूँ हमारे बिशप साहब और प्रभु परमेश्वर पिता मैडम सुबिता मंडल और उनके प्रभु सेवकाई के लिए, उनके सेहत को बहुत ऐसे आशीष ताकत और तंदुरुस्ती दे, उनके सेवकाई में बहुत ऐसे आशीष करें, और उनके प्रभु परमेश्वर उनके तमाम ज़रूरत को पूरा करे। और दुआ करते खुदा बार हमारे DRC प्रभु परमेश्वर तमाम प्रभु ऑफिसर्स को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। MCI प्रभु परमेश्वर तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, और तमाम पासवानों को DS और प्रभु परमेश्वर दुआ करते प्रभु परमेश्वर तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते। बहुत ऐसे आशीष और ताकत और तंदुरुस्ती दे। और प्रभु पूरे मिशनरी पास्टर के लिए और एक एक लोगों को जो प्रभु परमेश्वर काई में है उनके साथ रहे। ले एक्टिविटी और प्रभु परमेश्वर हमारे अपोस्टल कमेटी मेंबर, उन सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। बहुत ऐसे आशीष करे, ताकत और तंदुरुस्ती दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ खास तौर में आज शाम के प्रभु परमेश्वर उसके लिए, प्रभु परमेश्वर पास्टर कमेटी के लिए खुदा बाप, प्रभु परमेश्वर कॉन्फ्रेंस के लिए, उन सबको साथ रहें और उन सबको सुरक्षा दे, सही सुरक्षित सब कुछ होने में आप सहायता, मीटिंग होने में सहायता और मदद करें। दुआ करते खुदा बाप इन सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, बहुत ऐसे आशीष करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राज्यपाल के लिए और तमाम मंत्रीगणों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, और तमाम सैनिक और एयरफोर्स के नौजवानों और प्रभु परमेश्वर नेवी का और प्रभु परमेश्वर तमाम एक एक लोग सोल्जर्स को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। पुलिसकर्मी को, ट्रैफिक पुलिस और तमाम छोटे से लेकर बड़े सब सारे प्रभु परमेश्वर पिता सरकारी ऑफिसर्स को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षा दे, ताकत और तंदुरुस्ती दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, सबको सुरक्षा दे। और विशेष करके उनके लिए जो हमारे अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के तमाम प्रभु परमेश्वर विश्वासी जन के लिए इस हफ्ते जिनका भी प्रभु परमेश्वर जन्मदिन मना रहे हैं, उनके साथ रहे, उन्हें लंबी आयु दे, शांति सुरक्षा दे। और विगत साल जो कर नहीं सके, ये नया साल उनके लिए बहुत ऐसे मुबारक रहे और स्वास्थ्य दे और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह एनिवर्सरी इस हफ्ते में जितने लोगों का है प्रभु परमेश्वर उनके वैवाहिक जीवन में बहुत ऐसे आशीष करें, ताकत और तंदुरुस्ती दे। उनके वैवाहिक जीवन दूसरों के अन्य जाति के लिए उदाहरण बन सके, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा और प्रशंसा हो। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी तरह डॉक्टर, नर्स और तमाम साइंटिस्ट को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। बहुत ऐसे प्रभु परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे और सब कुछ होने में सहायता और मदद करे। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप, ये सारी विनती प्रार्थना तेरे हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु परमेश्वर ये सारी विनती और प्रार्थना को तेरे चरण में रखते हुए, और प्रभु परमेश्वर खास तौर में उनके जो अभी शरीर में बीमार है, लाचार है, और प्रभु उनको सहायता और मदद कर और पूरी तरह से छुटकारा दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ अरुल हैरिस, उन्हें ताकत और तंदुरुस्ती, पूरी तरह से स्वास्थ्य और चंगाई दे और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें।
दुआ करते पास्टर कुर्नोलिस रॉय उनके स्वास्थ्य और चंगाई करें और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं। और भी जो हमारे परिवार में कोई शरीर में कमी कमजोरी है तो खुदा बाप उनके साथ रहे, उनको पूरी तरह छुटकारा दे और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करो। धन्यवाद के साथ ये सारे विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हुए आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें यूँ प्रार्थना करने सिखाया। आए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरे मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन में पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हमने अपराधी को माफ़ किया है उसी तरह हमारे अपराधों को माफ़ कर। हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत दलाल हमेशा तेरा है। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वास्तव में महान परमेश्वर है। ही इज़ ग्रेटेस्ट गॉड हु हियर्स आवर प्रेयर। अब ये वक्त होगा अजीज़ों कि हम प्रेज़ एंड वर्शिप में जाएंगे और कुछ गीतों के माध्यम से हम परमेश्वर पिता की महिमा को करेंगे। एंड नाउ वी विल ग्लोरीफाई गॉड बाय सिंगिंग फ्यू सॉन्ग्स, प्रेज़ एंड वर्शिप सॉन्ग्स, and it will be led by our church choir team. So may I request them, please come and lead us in praise and worship.
परमेश्वर पिता का धन्यवाद है इस प्रेज एंड वर्शिप के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए, जबकि हमने गीतों के माध्यम से परमेश्वर को महिमा दी। अजीज़ों, हमारे बीच में अब एक कन्फर्मेशन सर्विस है मिस्टर लकी सैमुअल की, और इनकी कन्फर्मेशन सर्विस हमारे जो पासबान हैं, सीनियर पासबान रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा लिया जाएगा। और मैं निवेदन करता हूं कि पादरी साहब आएँ और कन्फर्मेशन सर्विस को ये लें। नाउ वी हैव कन्फर्मेशन सर्विस विल बी लेड बाय आवर पास्टर in charge, Reverend Dr. John R. Vishwas, and the confirmation service of Mr. Lucky Samuel. Lucky Samuel. आइए हम इस कन्फर्मेशन सर्विस में सहभागी हों और मिस्टर लकी सैमुअल के लिए भी हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनको बतायत से अपनी आशीषों से भरे। जो कलीसिया खुदावन की है और वो ज़माने के आखिर तक उसकी हिफाजत करेगा, ताकि उसकी आला हमद व सिताइश हो और उसका कलाम और मजहबी कानून हकीकी तौर पर पूरी किए जाए और मसीह रिफाकत और उसूल कायम रखे जा सकें और ईमानदारी तरक्की पाई जाए और दुनिया रूहानी तब्दीली में बढ़ती चली जाए। हर जगह हर ज़माने में फजल के जो सिर्फ उसी से मिलता है उससे हासिल करने में लगे रहें। इस पाक शराकत में हम लकी जेम्स को आपके सामने मौजूद है, जिन्होंने पाक बपतिस्मा पाया है, जिन्होंने कलीसिया के हकूक़ और फ़राइज़ को सीखा है और जिन्हें मेथोडिस्ट कलीसिया की मसीह तालीम, मकासद और उसूलों के बारे में सिखाया गया है, कलीसिया की उस पाक शराकत में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए हम खुदा के खौफ में इस जमात के रूबरू चंद सवाल उससे उसके इरादों और ईमान के बाबत करते हैं। तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप इसका जवाब दीजिएगा और आप कहिएगा हाँ मैं वादा करता हूँ, ठीक है? आइए जी, जो हम यहाँ आए हैं कि खुदा की कलीसिया में शरीक किए जाएं, हमें खुशी होती है कि जेम्स तुमने इस बात का दिली इरादा किया है कि कलीसिया में शरीक होने के हकूक़ और फ़राइज़ को हासिल करो। इसलिए ज़रूरी और मुनासिब है कि शामिल होने से पेशतर तुम इस जमात के रूबरू अपने वायदों को आज सारे नौ दोहराओ, अपने ईमान का इकरार करो और अपने दिली इरादों को इन सवालों के जवाब देने में ज़ाहिर करो। क्या तुम यहाँ खुदा के हुजूर और इस जमात के रूबरू अपने बपतिस्मे के अहद और पैमाने को संजीदगी यानी गंभीरता के साथ वायदों को और सारे नौ कायम और मजबूत करते हो? क्या आप खुदा यीशु मसीह को अपना मालिक और नजात देने वाला कबूल करते हो और उसकी बादशाहत के वफादार शरीक रहने का वादा करते हो? हाँ मैं मानता और कबूल करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ और कबूल करता हूँ। क्या आप मसीह ईमान को जो जैसा हमारे खुदा यीशु मसीह के नए नियम में दर्ज है कबूल करते हो और दूसरों तक उस तालीम को पहुँचाने का संजीदगी के साथ अहद करते हो? हाँ मैं अहद करता हूँ। हाँ मैं अहद करता हूँ। क्या आप मेथोडिस्ट कलीसिया के वफादार शरीक बनोगे और अपनी हाजिरी, दुआ, हदियों और अपनी खिदमत से इसको मजबूत बनाओगे? हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। अब आपने वादा करा है कि आप इस चर्च में आते रहेंगे नियमित रूप से और प्रार्थना में भाग लेंगे और जो भी आप कमाते हैं उसका दसवांश को दोगे, ठीक है ना? और जो भी सेवा का अवसर आपको दिया जाएगा उसमें आप भाग लोगे, ठीक है? अच्छी बात। खुदावन अपने आसमानी फजल से लकी जेम्स आपकी हिफाजत करे और अपनी रूह से आपको तकबीयत दे ताकि आप खुदा यीशु मसीह के हकीकी शागिर्दी में कायम और मजबूत बने रहें। आमीन।
करो जी, उधर मुँह करो। अजीजों, हम इस हमारे भाई लकी जेम्स को, जिन्हें मसीह कलीसिया की शराकत में कबूल किया गया है, आपकी मोहब्बत और हिफाजत को सपुर्द करता हूँ। आपकी इस अक्षास के लिए क्या राय है? अब कलीसियाई रूप से, चूँकि हमारी सर्विस लिंक के द्वारा है, पासबान इस राय को कलीसिया की तरफ से पढ़ना चाहते हैं। इधर लकी जेम्स, आपको मसीह कलीसिया का शरीक कबूल करने में हमें खुशी होती है। हम आपको कलीसिया के हुकूक के लिए खुशामदीद कहते हैं। आपकी सुलह, खुशी और बेहतरी के लिए हम खुदा और उसके कलीसिया के सामने इस ऐद को दोहराते हैं। खुदा आपको बरकत बख्शे, आपकी निगरानी करे और अपने चेहरे का जलवा आप पर दिखाए और आप पर रहम करे। खुदावंद का चेहरा आप पर मुत्तवी हो और आपको सलामती बख्शे। आमीन। अजीजों, मैं खुदा यीशु मसीह के नाम पर लकी जेम्स को, जिन्हें हमने आज कलीसिया की शराकत में कबूल किया है, आपकी मोहब्बत और निगरानी में सुपुर्द करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी के अंदर दुआओं में और मसीह ज़िंदगी में नमूने को से कोशिश करें, ताकि ये लकी जेम्स अपने ईमान में बढ़ते जाएं और उम्मीद में कायम और मजबूत और मोहब्बत में कामिल होता जाए। आमीन। भाई दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं लकी जेम्स के लिए प्रभु, जिसको आज मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के मेंबरशिप में दाखिल किया गया है। पूरी शराकत के द्वारा इनके ईमान के बाइस जो शिक्षा इनको दी गई, उसके द्वारा आज प्रभु ये आपके कलीसिया में दाखिल किए गए हैं। हमारी प्रार्थना कि इन्हें बरकत दें, इनके माँ बाप को बरकत दें और इसके परिवार के तमाम लोग उनको बरकत दें और बरकत का कारण बनाएं। आगे आप इसके साथ रहें, ताकि एफेसस मैथोडिस्ट चर्च की हिंदी कांग्रेगेशन इसके कलीसिया में शरीक किए जाने से बरकत हासिल करे। हम इन्हें और इनके ख़ानदान को बरकत देते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदूस की हिफाजत और शराकत लकी जेम्स के साथ, इनके परिवार के हर एक जनों के साथ, इनके माँ बाप के साथ, मिसेस जेम्स के साथ और ख़ानदान के हर एक लोगों के साथ और इस बुजुर्ग कलीसिया के हर एक विश्वासियों के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। जय मसीह का स्वागत है आपका। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, जय मसीह। अच्छा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे इस परिवार के लिए प्रभु जी, मिसेस जेम्स के लिए, इनके बेटे लकी के लिए प्रभु, जिसको आज हमने आपके कलीसिया के अंदर शराकत दी प्रभु। हम चाहते हैं कि जवान आपका बढ़ता चला जाए और आगे इसके जीवन में जो भी आपकी सिद्ध इच्छा है उसको पूरी करें। इस परिवार की रक्षा करें, उनकी यात्राओं में, उनके तमाम कार्यों में तो आपकी अगुवाई मिले, आपके परिस्थिति के साथ रहें, अपने आशीष दें, उनकी आवश्यकता पूर्ति करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है कि वास्तव में परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब वो चुनता है किसी को तो अपने योजनाओं के मुताबिक परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है। एंड गॉड यूजेस द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, अकॉर्डिंग टू हिज विल। मे गॉड ब्लेस हिम एंड मे गॉड ब्लेस मिस्टर लकी सैमुअल एंड हिज फैमिली अबंडेंटली। अजीजों, अब ये वक्त होगा स्क्रिप्चर रीडिंग का, और जो कि आज का पाठ लिया गया है वो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 8 से लेकर 16 वचन तक। नाउ फॉर टुडेज स्क्रिप्चर पोर्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 2 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 8 to 16. Nepali reading will be read by Mr. Ishmael Lepcha. English reading will be read by Mr. Daniel, and Hindi reading will be read by Miss Tansha.
नेपाली रीडिंग मिस्टर इस्माइल लेप्चा, इंग्लिश रीडिंग मिस्टर डैनियल और हिंदी रीडिंग मिस तांशा के द्वारा हमारे सामने पढ़ा जाएगा और उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम को उसके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा सुनेंगे. आफ्टरवर्ड्स we will hear the word of God from Reverend Dr. John R. Vishwas. Let us prepare our hearts, mind and soul to hear the word of God. Good morning, church. Today's reading has been taken from Luke chapter 2, verse 8 to 16. The shepherds and angels. That night there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel assured them, "Don't be afraid." He said, "I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. And you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of clothes, lying in a manger." Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, "Glory to the God in the highest in heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased." When the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, "Let's go to Bethlehem. Let's see this thing that has happened, which the Lord has told us about." They hurried to the village and found Mary and Joseph, and there was the baby lying in the manger. Thank you. The scripture ends here. अब त्यस देशमा चौरमा रहेर राति आफ्नो बगालको हेरचाह गरेर बस्ने गोठालाहरू थिए. औ प्रभुको एउटा दूत तिनीहरू कहाँ खडा भए र प्रभुको तेज वरिपरि चम्क्यो औ तिनीहरू साह्रै डराए. तब दूतले तिनीहरूलाई भने, "नडराओ, किनभने हेर, म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु, जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ. किनभने दाउदको सहरमा आज तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ. औ तिमीहरूलाई चिन्न चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुँडमा सुताइराखेको भेटाउनेछौ." तब एकासी ती दूतसँग यसो भनेर परमेश्वरको स्तुति गर्ने स्वर्गीय सेनाको एक दल देखा पर्यो. परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा उहाँ प्रसन्न हुनुभएका मानिसहरूलाई शान्ति. जब दूतहरू तिनीहरूबाट स्वर्गमा गए, तब गोठालाहरूले आपसमा भने, "आओ, हामी बेथलेहममा जाउँ र हुन आएको यो घटना र परमप्रभुले हामीलाई बताउनु भएको कुरा गएर हेरौँ." औ तिनीहरू आतुरीसँग गए र मरियम र युसुफ दुवैलाई र बालकलाई चाहिँ डुरमा सुतिरहेको भेटाए. आमेन. सबको जय मसीह की. मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए लूका 2 उसका 8 से 16, जिसमें इस प्रकार लिखा है, "और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है. और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे." तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, "आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे ये प्रसन्न है, शांति हो." जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, "आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखें." और उन्होंने तुरंत जाकर
मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हम लोग बड़े धन्यवादी हैं प्रभु के परमेश्वर के कि उसने मौका दिया। Dear friends, we are rejoicing in the Lord for giving us this time, and today we are thinking to meet in person here in the church and have a worship service, but because of some reason, and this zone is under also red zone, and also the direction that we have received, I think it is good that we should wait for some more time. So we three pastors decided that we'll wait for some more time, and today we'll continue our worship service in Zoom only and by link only. So we are having this service, and I hope that we all understand. मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज से हमारी आराधना चर्च में शुरू होनी थी, लेकिन कुछ ऐसे कारणों को देख करके, और इसलिए भी कि हमारा एरिया ये रेड जोन में है और इन दिनों में कई केसेस हो रहे हैं। और एक और बात जो हमने देखी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं 60 प्लस और जो बच्चे 10 साल से कम है चर्च में नहीं आ सकते, तो हमने सोचा कि हम आज भी लिंक के द्वारा आराधना करें जिसमें आप भाग ले रहे हैं। लेकिन प्रभु ने चाहा तो बड़े दिन के दिन हमारी आराधना इन पर्सन होगी चर्च में, और हम उस दिन आएंगे। हमारी 3 आराधनाएं होंगी, कंबाइन सर्विस होगी सुबह 8:30 बजे, और उसमें भाग लेंगे वे लोग जो 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। और उसके बाद हमारी आराधना होगी 10:30 बजे, इसमें भाग लेंगे वे लोग जो 10 किलोमीटर के दायरे तक रहते हैं। और उसके बाद हमारी आराधना होगी 12:30 बजे, जिसमें 11 किलोमीटर से 25 या 30 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 25 यानी दिसंबर को बड़े दिन के दिन हमारी आराधना चर्च में होगी, और उससे पहले 24 तारीख को भी हम आराधना करेंगे लिंक के द्वारा रात को 10:30 बजे, और ये आराधना आपके पास पहुंचेगी लिंक के द्वारा। इसको हम याद रखेंगे। Dear friends, we want to praise the Lord for this time that He has given to us, and I hope that we all are rejoicing and preparing ourselves for Christmas, and our preparation will bring glory, honor to the name and Savior, our Lord Jesus Christ. जो पाठ हमारे लिए पढ़ा गया वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से 16। The scripture that was read to us is found in St. Luke's Gospel chapter 2 verse 1 to 16, but my sermon will be based on Luke chapter 1 verses 28 to 38. Luke chapter 1 verse 28 to 38, where we'll see little bit about Mary and Joseph. क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हमें इस पर बहुत ही गहराई से सोचने की आवश्यकता, और परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा ऐसी हमारी आशा है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने मनों को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। एज वी स्टार्ट दिस सर्मन, लेट अस प्रे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए जो आज हमारे बीच में है, और हम चाहते प्रभु कि आज की आराधना और आज का वचन आपको महिमा दे सके। आप मेरी सहायता करें, हर एक सुनने वालों की सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। डियर फ्रेंड्स, वी हैव इन द स्क्रिप्चर अबाउट द विजिटेशन ऑफ एंजल गब्रियल एंड हिज विजिटिंग Mary, giving her a message of the birth of Jesus Christ. And I thought to shift the lesson from 2nd chapter to 1st chapter, but it's good that we have read the 2nd chapter because this is the text for Christmas. And we'll be reading all the time 2nd chapter of St. Luke 1 to 16, and I have decided to give you certain the message that talks about the responsibility of Mary and Joseph. Now, let me also talk to you in a very precise way about at least 5 things about Mary and Joseph.
And we read about that in the scripture here, which is also very important for us to understand and read. And we read here in first chapter of St. Luke's Gospel, first chapter 26 onward. यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 26 पद से लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम था मरियम। उस कुमारी का नाम था मरियम। जो पहली बात हम देखना चाहते हैं वो है मरियम की स्वीकार युक्ति। द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू सी टुडे इज मेरीज अफर्मेशन एंड व्हाट शी सेड। उसने कहा, एक बहुत बड़ी बात उसने कही, परमेश्वर के स्वर्गदूत से कहा उसने कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ और मेरे जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार हो। यहाँ लिखा है देख, 38 पद में लिखा है देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। द अफर्मेशन ऑफ मेरी, मेरी ने परमेश्वर की योजना को स्वीकार करा और उसने स्वर्गदूत से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ। यहाँ पर हम मेरी के उस बात को देखते हैं जो हमारे लिए समझना जरूरी है, हमारे लिए जानना जरूरी है, और वह है मेरी या मरियम की जीवन में आज्ञाकारिता। उसने अपने जीवन में ईश्वर के वचन के प्रति जो आज्ञाकारिता हम पाते हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया। और ये पहली बात उसने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। पवित्र शास्त्र का जो ज्ञान मरियम को था वो आश्चर्यचकित कर देने वाला। अगर आप मैग्निफिसेंट को देखें, मरियम के गीत को देखें, तो आप पाएंगे कि मरियम वास्तव में परमेश्वर के वचन को समझती थी। उसके गीत में पुराने नियम के 15 ध्यान देने योग्य बातें हैं जो हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 46 से 55 पदों को अगर देखें तो यहाँ करीब करीब 15 बातें हैं जो मरियम परमेश्वर के वचन के बारे में कहती है। इफ यू सी माय फ्रेंड about the knowledge and understanding of Mary about the Old Testament, there are at least 15 things. Today we are not looking on those things. आज हम उसमें नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन 15 बातें हैं जो हम पाते हैं पहले अध्याय के 46 से 55 पद पर। और अपने मैग्निफिसेंट में अपने उस ईश्वर की स्तुति के गीत में मरियम इन बातों का जिक्र करती है। मित्रों, यहाँ शिक्षा क्या हम पाते हैं? शिक्षा हम ये पाते हैं कि हम जो प्रभु के लोग अपने आप को कहते हैं, हम हैं भी, हमें उसके वचन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। हम लोग बहुत बार खुश हो जाते हैं क्योंकि हम चर्च में आते हैं, बाइबल अध्ययन में भाग लेते हैं, और पासबान होने के नाते हमने आपको कहा है कि आप बाइबल अध्ययन में भाग लें, कहीं कोई रुकावट नहीं है। अगर हमारे चर्च के पासबान है उसमें भाग लें, किसी और चर्च के पासबान बाइबल स्टडी लेते हैं तो आप भाग लीजिए, कोई रुकावट नहीं। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य होता है प्रभु के वचन को पढ़ना और समझना और जानना। तो मेरी उन बातों को जानती थी, ईश्वर के वचन को जानती थी, और उसके अनुसार उसने अपने जीवन को व्यतीत करा था। और उसका जीवन की खास बात क्या थी कि वो ईश्वर के लिए पवित्र जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरी हैड स्टडीड द वर्ड ऑफ गॉड, read the word of God. I don't know in what form she read, but definitely she might have read Torah, she might have read the Psalms, and she might have read the books of these prophets. Definitely, because at that time the gospel was not existing in written form. But Mary was so devoted that she studied this word again and again. And in the Magnificat, where we read about Mary's prayer, which is mentioned in from 46 to 56 verse of chapter 1 of St. Luke's Gospel, we see all these things. Why? Because Mary said to the angel, let the will of God be done in my life. Friend, when you know the word of God, जब ईश्वर के वचन को आप समझते हैं या समझती हैं, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। अगर हमने इसकी इच्छा को नहीं जाना, इसका दोष हम ईश्वर को नहीं दे सकते। उसका दोष हमारे जीवन का है कि हम उसके वचन को पढ़ते नहीं है, उसके वचन पर ध्यान नहीं देते हैं।
क्योंकि वचन के अंदर परमेश्वर हम सबसे बातचीत करता है। इन द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड स्पीक्स टू अस डायरेक्टली, एंड टू डू द विल ऑफ गॉड इज टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। ईश्वर की इच्छा को करने का मतलब है उसके वचन को मानना है, उस पर चलने की बात है। तो पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम ने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो जाए। आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड एंड लेट हिज वर्ड बी फुलफिल्ड इन माई लाइफ। ये पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं मरियम के जीवन में, उसने तुरंत परमेश्वर के प्रति अपने हार्दिक समर्पण का अंगीकार किया। पुराने नियम के वचन का संदेश उसके सामने सजीव उठा। यहाँ व्यवहारिक महत्व की एक शिक्षा, उसने कहा परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब स्वर्गदूत को उसने पूछा कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं पुरुष को जानती नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी अभी तक मंगनी हुई है, तो ये काम कैसे होगा, कैसे मैं माँ बनूंगी, ये हो नहीं सकता। और मित्रों, बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो मरियम का सवाल सही सवाल था। इफ यू सी फ्रेंड, बायोलॉजिकली दिस क्वेश्चन ऑफ मेरी वॉज अ रियल क्वेश्चन, a practical question. No physician will question this question. She said it rightly. Then the angel said, with God everything is possible. Nothing is impossible with God. And that took place in due course. मित्रों, आज जबकि हम बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं, हम सब, हमारे मन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो असंभव लगती हैं। अगर हम देखें, आज के संदर्भ को देखें, if you see today's context or today's atmosphere around us, not only for this month but for last almost 1 year or 9th month of lockdown period, the question is, God, is it possible that you will take this pandemic away from us? Will you do that, Lord? हम ये सवाल कर सकते हैं, परमेश्वर क्या आप इस महारोग को, इस कोविड-19 के इस भय को आप हमारे हृदय से दूर रखेंगे या दूर कर देंगे पूरी तरीके से? अब हम कहेंगे कि ये असंभव। एनीवन कैन से दिस इज इम्पॉसिबल, बिकॉज हाउ मेनी पीपल हैव डाइड इन इंडिया नाउ? मोर देन 1 lakh people have died, and other countries also people have died just during this year. This year could be the year of silence. इस साल को हम शांत वर्ष कह सकते हैं। शांत इसलिए कि हमारे बहुत से लोग शांत हो गए। बहुत से लोग जो दुनिया में थे, हमारे साथ थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे उम्र के थे, हमारे उम्र से कम के थे, वो शांत हो गए, वो दुनिया से चले गए। तो हमारे जीवन में एक सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर आप इस बीमारी को हटाएंगे? क्या ये हट सकता है? एंड ही विल से, दिस इज ए जेन्युइन क्वेश्चन पास्टर, इट इज a question in my life also, in my heart also. But the angels answer, with God nothing is impossible. स्वर्गदूत के शब्दों में, जिब्राइल के शब्दों में उत्तर है, परमेश्वर से या उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। जिस काम को हम असंभव सोचते हैं मित्रों, उसको परमेश्वर संभव कर सकता है। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चली गई, हो सकता है कुछ ऐसे हैं जिनको VRS लेना पड़ा, हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आधी सैलरी मिल रही है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको 1/3 सैलरी मिल रही है। आप कहेंगे परमेश्वर बहुत ही मुश्किल से 9 महीने तक मैंने घर चलाया, लेकिन अब कैसे चलेगा? ये असंभव दिख सकता। वो कहता है मेरे लिए संभव है। मैंने तुम्हें भोजन कराया, तुम भूखे नहीं रहे। मैं वही परमेश्वर हूं जो आज से लगभग 3000 साल पहले इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लिया है। याद करो उन 25 से 30 लाख लोगों को जो लगभग 38 से 40 साल तक जंगल में भटकते फिरे। उनको किसने भोजन कराया? ना तो उन सालों में उन्होंने खेती करी, ना तो उनके हल चले, ना तो उन्होंने बीज बोया, ना तो उन्होंने परिश्रम करा, लेकिन मैंने स्वर्ग के झरोखे खोल करके उनको मन्ना खिलाया, और जब उनको इच्छा हुई तो मैंने उनको नॉन वेज भी दिया। मैं वो परमेश्वर हूँ, मैं वो परमेश्वर हूँ। याद करो, जो किरिथ नाले के सामने बैठा उस नबी को मैंने 3.5 साल तक भोजन कराया।
एलिया को और उनके द्वारा कराया जो भोजन लेके भाग जाते हैं, यानी कौवे। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारा वो परमेश्वर हूं, मैं असंभव को संभव करने वाला हूं। तो क्या आवश्यकता है हमारे ट्रस्ट की, हमारे भरोसे की। Dear friend, dear my beloved friend, what is required today is our trust in the promises of God. And this morning I want to reaffirm with all of us that our God is a God of impossibilities. हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कि आपकी तनख्वाह है वो आधी हो गई या 1/3 हो गई या नौकरी चली गई, परमेश्वर आपको भूखा नहीं रखेगा। उसने आपके घर में प्रबंध करा है। हाँ, ये जरूरी है कि लैविशली शायद नहीं हो सका, और अब भी हम लैविशली कोई योजना नहीं कर पा रहे चर्च के अंदर, क्योंकि साथ साथ हमारे घर के साथ साथ चर्च के इनकम में भी बहुत फर्क पड़ा है। हम काउंट कर रहे थे लगभग 60 to 65% फर्क पड़ा है, क्योंकि जो लोग देने वाले हैं प्रभु की महिमा के लिए, उनके घर में ही काम आ रहा है। लेकिन प्रभु कलीसिया को भी चला रहा है, प्रभु आपके घर को भी चला रहा है। और स्वर्गदूत ने कहा मरियम से, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? वो आज आपसे कहता है मित्रों, द गॉड हु सेड टू मेरी, इज एनीथिंग हार्ड फॉर द लॉर्ड? द सेम लॉर्ड इज सेइंग टू अस, इज एनीथिंग इज हार्ड फॉर मी इन योर लाइफ, इन योर कॉन्ग्रीगेशन? आई हैव प्रोवाइडेड टू इज़राइलिट्स फॉर 38 to 40 years in the wilderness. I provided food for Prophet Elijah for 3.5 years. I will not desert you. You will not be deprived of any necessity, any need that you have in your life. And this is second important thing that we learn from the life of Mary and Joseph. The third thing, तीसरी बात जो हम देखते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, और वो है मरियम का प्रभु के सामने उसके वचन पर उसका भरोसा। पुराने नियम के वचन का संदेश उसके सामने सजीव उठा था, और उसने इसके व्यवहारिक महत्व को समझा था, और उसने इसलिए अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर लेना अच्छा समझा, और उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना अच्छा समझा। अगर आप देखें यहाँ पर, मैं चाहूँगा मेरे साथ आप निकाल लें कुलुस्सी की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 16-17 पद को हम पढ़ें। कुलुस्सी की पत्री उसका 3रा अध्याय 16-17 पद में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन से काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मरियम ने अपने आप को, जैसे मैंने पहले बोला आपको, ईश्वर के वचन से भर दिया था, और वो पढ़ी लिखी थी, क्योंकि अगर वचन को पढ़ने की बात है तो पढ़ना लिखना जरूरी है। गांव की थी, नासरत की थी, लेकिन अक्षर ज्ञान था उसको। अब प्रभु ने एक ऐसे कुमारी को चुना जो ना केवल संस्कारी थी लेकिन थोड़ा पढ़ी लिखी थी, वचन को पढ़ सकती थी। तभी तो उसने मैग्निफिसेंट में उन बातों का जिक्र करा, वर्णन करा, जिसको मरियम की प्रार्थना, मरियम के धन्यवादियाँ कहते हैं, जहाँ पुराने नियम के संदर्भ में करीब करीब 15 हवाले आए हैं, बातें आई हैं जो कहती है। और उसको जानना ही काफ़ी नहीं था, लेकिन मरियम ने उन बातों के लिए अपने आप को अर्पण किया था, समर्पित किया था। ये मुख्य बात है, ये मुख्य बात है। तभी जब यीशु मसीह उनके परिवार में आया, एक बालक के रूप में, एक बेबी के रूप में, और यीशु मसीह वहाँ बड़े होते रहे। 8 दिन के दिन उन्होंने मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसको मंदिर में ले गए, उसको हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और फिर जब यीशु मसीह 12 साल के हुए तो उसको मंदिर में ले आए। और इसके अलावे भी मरियम ने अपने सारे बच्चों को, यीशु मसीह के बाद उसके घर में हुए, उनको उसने ईश्वर के वचन की शिक्षाएं दी, मूसा की व्यवस्था पढ़ाया। ये कहा जाता है मित्रों कि बच्चे के लिए जो पहला विद्यालय है वो माँ होती है। मदर इज द फर्स्ट
इंस्टीट्यूशन और स्कूल फॉर ए चाइल्ड। माँ बच्चों को सिखाती है, संस्कार सिखाती है, और अगर ईश्वर पर विश्वास उनका है तो ईश्वर के विश्वास के बारे में सिखाती है। और निश्चित रूप से यीशु मसीह को उसकी माँ मरियम ने इन सारी बातों से अवगत कराया था। एंड आई बिलीव डेफिनेटली मेरी had taught her son Jesus Christ while he was a child, and not only Jesus but his brothers sisters, about the word of God. It was a God-fearing family. It was a God words respecting family. मित्रों, आज जब हम बड़े दिन की शिक्षा को यहाँ ले रहे हैं या बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम इस बात को अपने परिवार में पाते हैं? वचन की शिक्षा क्या हम अपने बच्चों को देते हैं? क्या उनको संडे स्कूल में लाते हैं या शाम के समय अपने बच्चों के साथ दुआ के लिए बैठते हैं? ये सवाल प्रभु आज मुझसे और आपसे करता। बड़े दिन की तैयारी केवल हमारी तैयारी नहीं कि हम अच्छे से कपड़े पहने, अच्छा सा भोजन करें, लोगों को बुलाए, मित्रों को बुलाए, उनके घर जाएं, सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी तैयारी, क्योंकि मसीह विश्वास एक पारिवारिक विश्वास है, हमारी तैयारी हमारे बच्चों के साथ होनी चाहिए। क्या हमारे बच्चे हमारे साथ चर्च में आते हैं? क्या हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं संडे स्कूल में हम उनको भेजते हैं? क्या जवान बच्चे एमवाइफ ग्रुप में जाते हैं या यंग एडल्ट ग्रुप में जाते हैं वो? या हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अब वो बड़े हो गए, छोड़ दो जी? नहीं। याद रखें मित्रों, अगर बचपन में हमने बच्चों को डिसिप्लिन करके चर्च में लाना नहीं सीखा तो बड़े होकर वो चर्च में कभी नहीं आएंगे। और आज बहुत सी कलीसियाओं के अंदर यही समस्या है। लेकिन मरियम इन बात को जानती थी, उसने खुद अपने जीवन में इन बातों को सीखा था और उसने इसके लिए अपने आप को समर्पित करा। और जब इसके बच्चे प्रभु ने उनको घर में दिए, यूसुफ और मरियम के घर में दिए, तो उनको वचन उन्होंने पढ़ाया, सिखाया। और आज हम ये सीखते हैं इस महत्वपूर्ण पॉइंट में, तीसरी बात में, कि हमें भी बड़े दिन की तैयारी के लिए अपने बच्चों को तैयार करना है। उनको बड़ा दिन का मायना सिखाना है कि बड़ा दिन का मायना क्या, अर्थ क्या है। क्या यीशु मसीह इसलिए आया कि हम आनंद मनाए? जी हाँ, ठीक है, हम आनंद जरूर मनाएं, लेकिन हमें अपने बच्चों को साथ लेकर चलना। इसलिए हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम की पुस्तक में, जब जेल के दरोगा ने विश्वास किया तो लिखा उसने उसके पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। और लिखा कि जब तू विश्वास करेगा तो वह तेरा घराना उद्धार पाएगा। मसीह विश्वास मित्रों पारिवारिक विश्वास है। इसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं, माँ बाप भी हैं, जवान बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और दूसरे लोग भी हैं जो इस परिवार में पाए जाते हैं। और इस बात का एहसास मरियम को था और यूसुफ को था। चौथी बात, मरियम और यूसुफ ने, उसके पति यूसुफ ने अति सावधानी पूर्वक परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया। और लूका उसके दूसरे अध्याय के 22 से 24 में और 27 पद में इसका वर्णन हम पाते हैं कि जब यीशु मसीह 8 दिन का हुआ तो उन्होंने व्यवस्था के अनुसार वो विधियां पूरी करी जो उनके लिए ठहराया गया था, और इसका यहाँ पर उल्लेख दिया गया है, करा गया है, और बहुत ही अच्छे से करा गया है कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह 8 दिन के हुए तो उन्होंने ऐसा करा। वो अपने बेटे को मंदिर में ले जाए। लिखा, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ निकाल लें दूसरा अध्याय उसके 22 पद से या 21 पद से मैं पढ़ूंगा। आई वॉन्ट टू रीड 2nd chapter ऑफ लूक वर्सेस 21 ऑनवर्ड्स। जब वो 8 दिन पूरे हुए, उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पांडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा उस पर प्रकट करा था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को ना देख ले तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वो आत्मा के सिखाने से पवित्र मंदिर में आया, और जब यीशु के माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मित्रों, यहाँ पर हम उस बात को देखते हैं जहाँ
मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु मसीह के जब वो 8 दिन के हो गए तो उसको लाते हैं मंदिर में खतने के दिन। क्या मतलब है इसका? यहाँ माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, बपतिस्मा के बाद उनको हम कलीसिया में लाते रहें, संडे स्कूल में भेजते रहें, और जब वो बड़े हो जाए तो उनको दृढ़ीकरण के प्रक्रिया के बारे में बताए, उसमें उनको दे, उसमें उनको लाए। आज आपने देखा कि एक जवान का दृढ़ीकरण हुआ हमारे चर्च में। ये सारी बातें जरूरी है। हम जो माँ बाप हैं, क्या हम इन बातों के बारे में सीरियस हैं या गंभीरता से लेते हैं, या हम सोचते अपने आप होगा? अपने आप कुछ नहीं होता। इसलिए आज बहुत से ऐसी शादियां हो रही हमारे मसीह परिवार में जहां परेशानी है, कठिनाई है, क्योंकि मसीह मूल्य को बच्चों ने जाना नहीं है। कलीसिया के जो नियम हैं, जो हमारे भलाई के लिए, उसके लिए माँ बाप ने उनको सिखाया नहीं और उन्होंने कभी सीखा नहीं। जब हम बड़े दिन की तैयारी करते हैं मित्रों, आज हम देखते मरियम और यूसुफ के लिए कि उन्होंने अपने बेटे को यीशु के रूप में जो उनके गोद में प्रभु ने दिया था, जब 8 दिन का हुआ तो मूसा की व्यवस्था के अनुरूप वो उसको मंदिर में ले गए। चाहते तो सोचते कि चलो अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, जब हम नासर जाएंगे तो वहाँ के सिनेगोग में ले जाएंगे और बाकी जो कार्य हम करते रहेंगे, भेंट चढ़ाते रहेंगे। खतना हमने 8 दिन में कर दिया जी नहीं, वो वही उनको ले गए मंदिर में, और वहाँ पर जो कुछ उन्होंने करा उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया, जबकि आज हम उस पर गौर नहीं करना चाहते। लेकिन जो मुख्य बात है, चौथी बात है कि मरियम और यूसुफ ने मूसा की व्यवस्था को माना और उसके अनुसार वो चलते रहे। तभी यीशु मसीह ने कहा ना, अगर आप पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 17 पद में यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं लेकिन पूरा करने आया हूँ। शुरू से लेकर के आज तक वो व्यवस्था को पूरा कर रहा था। जैसे उसके माँ बाप ने ईश्वर की आज्ञा मानी, वो भी उसकी आज्ञा मानता रहा। और फिलिप्पियों के 2 अध्याय के 5 से 11 पद में पौलुस कहते हैं कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था तुम्हारा भी हो जाए, क्योंकि वो जो सब कुछ है उसने अपने आप को खाली कर दिया और यहां तक आज्ञाकारी रहा। उसने अपने को शून्य कर दिया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञाकारी रहा, और उसकी इच्छा थी कि वो क्रूस पर जाए और अपने आप को दे दे। और फिर वो जी उठाया गया और उसको नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। डियर फ्रेंड, द सरेंडरिंग ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट डिड नॉट हैपन सडनली, but the teaching was there from her mother and father also, that son, we belong to a group of people to whom the law is given and we need to follow the law of God, and that is Mosaic law. And Jesus in the future days said to his disciple and people in Matthew chapter 5 verse 17, they do not think that I have come to abolish the law, but I have come to fulfill the law. And that is what all about. My preparation for Christmas is going to be completed when I fulfill His law in my life. The law of love. Hear, O Israel, that you love your God with your whole soul, mind and being, and then love your neighbor as your own. मित्रों, ये ईश्वर की आज्ञा है जिसकी बुनियाद मरियम और यूसुफ ने यीशु मसीह के बचपन से उसके हृदय में डाल दिया था। और जब वो बड़ा हो गया, सेवा में चला गया, 33.5 साल की उम्र में उसने पिता से कहा, जब गसेमनी में था, पिता हो सके तो ये कटोरा मुंह से टल जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूं एक भयंकर दर्द को, तकलीफ को, लेकिन मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। जी हाँ, मरियम ने और यूसुफ ने यीशु के सामने इस बात को रखा था शुरुआत से, और उसने अपने जीवन में उस घड़ी जब उसको पूरा करना था, उसने पूरा करा। आखिरी बात और 5वीं बात, परमेश्वर पर उनका विश्वास और ईश्वर के प्रति उनकी आज्ञाकारिता। असली मरियम स्वर्गदूत ने उससे कहा, जब स्वर्गदूत उसके पास आया तो उसने स्वर्गदूत ने उससे कहा, क्या कहा? एक बहुत अच्छी बात उसने कही। एक बहुत अच्छी बात का वर्णन यहाँ पर दिया गया, और वो हम पाते हैं यहाँ पर लिखा है कि मरियम
जय तेरी हो, जय तेरी हो। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है और उनको जय प्रदान करता है। यहाँ लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, 28 पद पहले अध्याय लूका का, स्वर्गदूत ने उससे भीतर आकर उसके पास आकर उससे कहा, आनंद जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। An angel came to her and said, Greetings, O favored one, the Lord is with you. जब आप और मैं ईश्वर के वचन को आदर देते, सम्मान देते हैं, तो परमेश्वर हमें जय प्रदान करता है और आनंद प्रदान करता है। लेकिन आनंद और जय तेरी हो। मित्रों, आज हमें से बहुत से मसीह ऐसे हैं जिनके जीवन में वो खुशी नहीं पाई जाती है। हमारे जीवन में बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, क्योंकि घर में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। हम चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, और हम जब परेशान हो जाते हैं तो उसका श्रेय दूसरों को देते हैं कि उनके वजह से हमारे जीवन में, उनके वजह से हमारे परिवार में परेशानी। लेकिन अगर हम झांक के अपने अंदर देखें तो उसका कारण हम खुद हैं, क्योंकि हमने ईश्वर के वचन को आदर नहीं दिया, उसकी इच्छा नहीं मानी, तो परेशानी में आ गए। लेकिन यहाँ पर मरियम को स्वर्गदूत कह रहा है, आनंद जय तेरी हो मरियम। और जब हम आज बड़े दिन की तैयारी करते हैं मित्रों, प्रभु का वचन आज हमसे कहता है, आनंद जय आपकी हो, आपकी हो मित्रों, आपकी हो। पर ये जय और आनंद कहां से आएगा? आनंद कहां से आएगा? आनंद प्रभु की उपस्थिति से आता है। अगर आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति है तो चाहे कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, जीवन में कठिनाई आ जाए। इस साल 2020 में हम परेशानियों की परिभाषा कितनी कर दें उतना ही कम है। परेशानी पर परेशानी, दुख पर दुख, चिंताओं पर चिंताएं। अगर आपके प्रियजन हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो आप जानते हैं कि एक आर्थिक बोझ आपके परिवार में रहा, जो हमने महसूस करे अपने परिवार में जब मैं 21 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। और अगर आपका कोई प्रियजन प्रभु में सो गया तो जुदाई का दुख आज भी आपके मन में है, और भी परेशानी है, और भी कष्ट है। यीशु मसीह कहते हैं, हे सब थके अब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब मेरा जुआ अपने पर उठा लो, अब मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। जी हाँ, यीशु मसीह के आपके साथ निवास करना आपके जीवन में आनंद का कारण है, आपकी शांति का कारण है। और ये आनंद शांति प्रभु इस बड़े दिन के समय आपको देना चाहता है मित्रों। ही वांट टू extend that happiness, that strength in your life today, and the joy of the Lord is our strength. The peace of Holy Spirit, in the Holy Spirit, He wants to impart to us, to you, to me also, provided that we respect Him, respect His word, and able to follow that word as far as His will is concerned. प्रभु करे कि इस साल का बड़ा दिन हमारे लिए इन बातों को स्पष्ट करे मित्रों। शायद ये आज का सरमन एक अलग हटके रहा। हम हर साल ऐसे वचन सुनते जो एक कहानी के ऊपर आधारित, लेकिन ये ज़्यादा इस पर हमने सोचा, इस पर ध्यान दिया है, और मैं जानता हूँ कि इससे आपने आशीष पाई है। प्रभु आपको आशीष दे। हमारी ये कलीसिया आशीषित कलीसिया है। कठिनाइयाँ रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं, गलतफहमियाँ रहती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ चलता है। और अगर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है तो हर परेशानी आसान हो जाएंगी, हर कठिनाइयाँ जाती रहेंगी, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे नया जीवन देता हूँ। अब पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थी के 5 अध्याय के 17 पद में कि अगर यीशु मसीह में कोई है तो नई सृष्टि है। नई सृष्टि यानी स्वर्गीय सृष्टि। यहाँ की बातें तो मिटने वाली है, लेकिन हम उस अनंत काल के राज्य के वारिस बन गए हैं, यीशु मसीह के नाम से आपको प्राप्त होता है मित्रों, और इसके हम सब संभागी हैं। प्रभु इसके लिए हमें तैयार करे, और वो तैयारी आज हमारे इस एडवेंट सीजन की तैयारी है। परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, this morning we are grateful to you for talking to us. We thank you, Lord, for breaking the bread to us, Lord, the bread of life. And you could see these 5 things in and through the life of Mary and also Joseph. How they depended on you, Lord. How they are depending on you, Lord.
and you bless them in an immense way. हम धन्यवाद देते प्रभु कि मरियम और जोसेफ प्रभु आप पर आधारित रहे प्रभु, और आपने उन्हें आशीषित करा, और आज हमने उनके तैयारी के बारे में देखा। हमारी प्रार्थना प्रभु कि वचन हमारे हृदय के अंदर प्रभु घर कर जाए, ये फलवंती तो प्रभु हमारे हृदय रूपी खेत में ऐसे में फल लगे 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत वचन के लिए अजीजों। अब ये वक्त होगा कि हम अपने आखिरी गीत को गाएंगे, जो कि पाया जाता है इंग्लिश गीत की पुस्तक उसका 381 हिम, ओ लिटिल टाउन ऑफ बेथलेहेम। नाउ वी विल सिंग आवर लास्ट सॉन्ग of the service, which is found in English, hymn number 381, O Little Town of Bethlehem. And during this song we will collect our offerings as well. और इस गीत के दौरान हम अपने भेंटों को भी हम इकट्ठा करेंगे। आइए हम परमेश्वर की इबादत और परमेश्वर की महिमा इस गीत के द्वारा करें। Above thy
Let us pray for the offering. आइए हम offering के लिए प्रार्थना करें. Dear gracious Heavenly Father, we are very thankful to you, Lord, for your abundant grace, for your abundant blessings that you bestowed upon us through Jesus Christ. Lord, you are our creator, you are our sustainer, and Lord, you are the source of every blessings which we received from you, O Lord. Lord, I commit every family into your mighty hand, Lord. Bless them abundantly, and Lord, let your glory be shine upon them. And Lord, as we offer our offerings unto your feet, it will be used for your glory. And Lord, also, Lord, fulfill the needs of the church. And also, Lord, open the blessed heavens upon them. Thank you, God, for hearing our prayer. Once again, we magnify your name and we exalt your name on high. And we ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीज़ों, ये वक्त होगा कि हम चर्च अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे और उसके बाद क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ हम लोग सब रुखसत होंगे. Now it's time to hear the church announcements and followed by closing prayer and benediction by Reverend Dr. John R. Vishwas. Dear friends, we are grateful to the Lord for today's service that we have attended. प्रिय मित्रों, कुछ सूचनाएं हैं जो इस प्रकार से हैं. आपको प्रोग्राम जरूर दिया गया है, उसमें लिखा है कि हमारी आराधना 20 तारीख से शुरू हो, लेकिन आज फिर भी हमने आराधना या नहीं करी, लेकिन हम लिंक के द्वारा आराधना कर रहे हैं. लेकिन 25 तारीख को यानी बड़े दिन के दिन हमारी आराधना यहाँ पर इन पर्सन चर्च में होगी और 3 आराधनाएं होंगी. पहली आराधना सुबह 8:30 बजे, जिसमें वो लोग भाग लेंगे जो चर्च के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं. आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन अगर आपका घर हमारे चर्च से 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर तक, तो आपका समय है सुबह 8:30 बजे का. 6 किलोमीटर से 10 किलोमीटर जो लोग रहते हैं वो भाग लेंगे 10:30 की सर्विस में. 10:30 बजे सुबह जो आराधना होगी, द्वितीय सर्विस, उसमें आप भाग लेंगे. हमारे वे लोग जो 6 से 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं. और उसके बाद हमारी तीसरी आराधना होगी दोपहर 12:30 बजे. उसमें वो लोग भाग लेंगे जो 11 से लेकर के 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं. इसको आप याद रखेगा. डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू हैव वर्शिप on 25th, that is on Christmas Day, in person in the church. And those who are, the first service will be at 8:30 a.m. And those who are living in the range of 5 kilometers from the church, it is for them. They will participate in the first worship. The second worship will be at 10:30 a.m. And those who are living from 6 to 10 kilometers range from the church, they will participate in that service. And then the last service, that is 12:30 noon, it will be for the people who are living at 11 to 25 kilometers or 30 kilometers. They will participate in that worship, that is the worship at 12:30. And all this worship will be bilingual. ये सारी जो आराधना होंगी ये कंबाइन होंगी, यानी हमारे इन तीनों आराधनाओं में आप जो हिंदी कांग्रीगेशन के हैं, इंग्लिश के हैं, नेपाली कलीसिया के आप भाग ले सकते हैं. याद रखें कि केवल 100 लोग ही आप आएंगे. फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को हम पत्र दें कि भाई हमारा त्यौहार है, थोड़ा सी उसमें ढील दी जाए. तो अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन 100 लोग उसमें होंगे और हम बैठेंगे. जो पहला बेंच है उसमें 3 लोग बैठेंगे, 2 किनारे 2 लोग और बीच में 1 व्यक्ति, और सेकंड बेंच हम खाली रखेंगे और थर्ड में बैठेंगे. ऐसा होगा. आप जब आते हैं तो मेहरबानी से सैनिटाइज़र से अपने हाथ को साफ कर लें, इसको ध्यान रखिएगा. और सोशल डिस्टेंसिंग आप रखिएगा मेहरबानी से, ताकि कोई ऐसा इन्फेक्शन किसी को ना हो. ऐसी आराधना, यही टाइमिंग हमारी सर्विस की होगी जो 1 जनवरी को होगी, इसको आप याद रखिएगा. ऑन द 1st January ऑल्सो इन सेम पैटर्न विल मीट थ्राइस. देयर विल बी 3 वर्शिप, 8:30, 10:30 and 12:30 noon. But we'll have the Christmas Eve service, that is on 24th night at 10:30, but that will be on Zoom also. तो हम उसमें लिंक के द्वारा भाग लें
24 तारीख की आराधना में, और 31 दिसंबर के नाइट में भी हमारी आराधना होगी, मिडनाइट सर्विस, और वो भी हम लिंक या जूम के द्वारा करेंगे। दोनों आराधनाओं में प्रभु का वचन देंगे डॉक्टर राजकुमार। तो इसको आप मेहरबानी से याद रखिएगा और इन आराधनाओं के लिए प्रार्थना करिएगा। मित्रों, बाइबल स्टडी जिसकी हमने शुरुआत करी 19 तारीख यानी कल, वो समाप्त हो गई। आखिरी बाइबल स्टडी में कड़ी में हमारी थी 19 दिसंबर को। अब हम दोबारा बाइबल स्टडी शुरू करेंगे, जो त्रैसेविक हम करते हुए जनवरी 15 के बाद करेंगे। तो मेहरबानी से याद रखें कि इन 25 दिनों में आगे चल के कोई बाइबल स्टडी नहीं होगी, और बाइबल स्टडी हम दोबारा शुरू करेंगे, वो है 15 जनवरी और उसके बाद। तो इसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे। जब हम आराधना के लिए आते हैं तो सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर, सेफ्टी को ध्यान में रखकर हर कोई चाय या बिस्किट चर्च के द्वारा आपको नहीं दिया जाएगा। आप अपना पानी लाइए, या हम कंटेनर के अंदर पानी रख देंगे, आप उसको पी सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। और मेहरबानी से सामने गेट से आएंगे आप, और जब बाहर निकलते तो बगल वाले गेट से बाहर जा सकते हैं और अपने अपने घरों को जा सकते हैं। हम चर्च के सामने भीड़ ना लगाएं, यानी हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के टच से अलग होंगे ताकि कोई गुंजाइश ना हो किसी प्रकार के इन्फेक्शन की। इसको हम याद रखेंगे। चर्च का ऑफिस खुला रहता है। समय है सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक। आप आइए, मेहरबानी से अपने चर्च फंड जमा करिए और रसीद ले लें। शादी की पुकार। लकी सैमुअल सन ऑफ मिस्टर सैमुअल जेम्स, जिनका पता है पृथ्वी राज रोड 17A इन फ्रंट ऑफ लोधी एरिया, लोधी गार्डन, न्यू दिल्ली 110003 की शादी मिस लवलीना कश्यप, डॉटर ऑफ सुरेश कश्यप, जो मिशन कंपाउंड चंपावत बनबासा की हैं, उत्तराखंड की हैं, के साथ 30 दिसंबर 2020 को शाम को दोपहर को 2:30 बजे को होने को करार पाई है। तो इसको याद रखिएगा, ये शादी की पहली और दूसरी पुकार है। मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा। लकी सैमुअल सन ऑफ मिस्टर सैमुअल जेम्स, पृथ्वीराज रोड 17A इन फ्रंट ऑफ लोधी गार्डन, दिल्ली, न्यू दिल्ली 110003 की शादी मिस लवलीन कश्यप, डॉटर ऑफ सुरेश कश्यप, मिशन कंपाउंड चंपावत बनबसा उत्तराखंड, के साथ 30 दिसंबर 2020 को गुड शेपर्ड मिशन एग्रीकल्चर चैपल चर्च में होने को करार पाई है। गुड शेपर्ड मिशन एग्रीकल्चर चैपल में होने को करार पाई है, और ये शादी की पहली और दूसरी पुकार है। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इन आशीष दे और हर तैयारी के अंदर इन दोनों परिवारों की सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, और हम प्रार्थना करते प्रभु इन दोनों जवानों के लिए, लकी सैमुअल के लिए और लवलीना कश्यप के लिए प्रभु, जबकि इस महीने में अगर आपकी इच्छा प्रभु 30 तारीख को ये गुड शेपर्ड मिशन एग्रीकल्चर चैपल चर्च में इनकी शादी होगी, जो उत्तराखंड में है प्रभु, चंपावत बनबसा में। हम चाहते कि इन आशीष दें, इनके परिवारों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हम प्रार्थना करते हैं। लवलीन के पापा मामा के लिए, खासकर मिस्टर सुरेश कश्यप उनकी पत्नी के लिए, पूरे परिवार के लिए प्रभु जी आप इन दोनों परिवारों को अपना अनुग्रह प्रदान करें, ताकि जब ये शादी होती नया परिवार बनता है प्रभु आप में बन सकें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अगर और भी कोई सूचना है चर्च के बारे में तो आपके पास पहुंचा दी जाएगी, लेकिन अब याद रखें कि हमारी सर्विस जो इन पर्सन चर्च में होगी वो 25 दिसंबर को होगी। हमारी 3 आराधनाएं होगी, सुबह
8 बजे, इसके बाद 10:30 बजे और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे। ये 25 तारीख दिसंबर को और 1 तारीख जनवरी को होगी। और जो मैंने बताया जैसे लोग भाग लेंगे उसको अब याद रखिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन या कोई ऐसी परेशानी किसी को ना हो। आइए हम खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते प्रभु आज की आराधना के लिए जो हमने करी प्रभु यहाँ पर, और हम जानते कि आपने हमारी आराधना स्वीकार की। हालांकि प्रभु बहुत ही कठिन समय प्रभु हम सब के लिए, जबकि चारों तरफ प्रभु सन्नाटा है और हम में से बहुत से लोग प्रभु विचलित हैं, परेशान हैं, लेकिन हम जानते प्रभु कि आपकी इच्छा के सामने मनुष्य शांत रहता है और शांत रहने में भला है, क्योंकि वचन में लिखा है, भजन 46:10 में लिखा है, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ। हे प्रभु हमारी इस तैयारी को स्वीकार करें और इस हफ्ते प्रभु जबकि हम आपके लिए और आपके आगमन की खुशी के लिए प्रभु तैयार करते हैं अपने आप को, हमारी तैयारी आपको पसंद आए। आज के आराधना के लिए, आज के पवित्र वचन के लिए जो आपने दिया, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीष वचन लें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल कुदस की इफाकत शिराकत हमें हर एक के साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारे एक एक बुजुर्ग के साथ, एक एक माँ बाप के साथ, एक एक जवान, एक एक बच्चों के साथ जो एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया के शरीक हैं, इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन।